we'll start with the next chapter, and in this chapter we'll study ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਰੰਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਰੰਟੀਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਟਰੂ ਫੈਕਟਸ that exist on the day of execution of a contract ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਜ਼ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਜ਼ਰਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਜ਼ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ लेकिन रिप्रेजेंटेशन डिफाइंड नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ਵਿੱਚ ਬਟ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਜ਼ਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਰਾਡ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੋਇਡੇਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੋਇਡੇਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਟ ਵੈਲਿਡ ਔਰ void ठीक है so this is all about this is all about the misrepresentation ठीक है misrepresentation च हमें you have to remember one thing that there is no intention of the party but there is a positive assertion person always talk about positive 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 but actually उसको पता भी नहीं है कि whether it is truly positive or not ठीक है तो आपने इसको पॉजिटिवली जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 18 और इसका इफेक्ट क्या होगा अंडर सेक्शन 19 और वो इफेक्ट क्या है voidable means which can be declared either valid or void at the option of one party इसमें एक ही एक्सेप्शन होती है लाइक व्हेन इट इज बाय अ साइलेंस क्या साइलेंस इज अ फ्रॉड और नॉट साइलेंस इज अ फ्रॉड व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक इसको याद रखना हमने साइलेंस तभी फ्रॉड होती है जब आपकी ड्यूटी होती है बोलना राइट अदरवाइज साइलेंस फ्रॉड नहीं होता ठीक है तो आई डोंट थिंक देयर इज something like that but there is section 125 which deals with the provisions of right of indemnity holder when sued तो जो वारंटी है वो क्या होता है एक इंडेमनिटी होती है वारंटी का क्या मतलब होता है आपने कोई चीज खरीदी होगी आज तक है ना उस पे कभी कभी आपने देखा होगा वारंटी होती है तो आपके मम्मी पापा बोलते होंगे अरे संभाल लो वारंटी अगर कोई चीज खराब होगी तो वारंटी दिखा के ये हमें इसको रिप्लेस करा सकते हैं या इसे ठीक करवा सकते हैं तो वारंटी क्या है वारंटी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं है लेकिन वारंटी होती क्या है कि अगर वो ब्रीच हो जाए वारंटी किसी ने जो दी हुई है उसको हम इंडेमनीफाई कर सकते हैं इंडेमनीफाई सेक्शन 124 है 124 इंडेमनिटी करता है फॉर एग्जांपल ए ने बी को बोला कि आप सी को अपने जॉब में रख लो है ना तो ए कहता मैं तो सी पे ट्रस्ट ही नहीं करता तो बी कहता अगर बी ने कोई नुकसान किया तो मैं आपको वो कवर कर दूंगा तो नाउ व्हाट सी इज डूइंग बी की हेल्प कर रहा है लेकिन इंडेमनीफाई करेगा अगर बी ने कोई भी नुकसान किया ए को तो वो उसको इंडेमनीफाई करेगा तो हाउ इज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है एक इंडेमनीफायर होता है और एक इंडेमनिटी होल्डर होता है इंडेमनीफायर कौन होता है जिसने इंडेमनिटी की है और इंडेमनिटी होल्डर जिसके लिए की है तो अगर ए कहता है कि ए बी को कहता है या फिर अब एक सिंपल मैं आपको सिनेरियो समझाती हूँ नाम लेके बताती हूँ कि इस तरीके से कभी कभी कंफ्यूजन होती है तो I'll take name from the people who are attending the course ठीक है तो let's say इसमें रमन जो है रमन को कोई बंदा चाहिए तो रमन को कुणाल आके बोलते हैं कि रमन आप ना अनामिका को जॉब दे दो तो रमन कहते हैं मैं अनामिका को नहीं जानता अगर उसने काम गलत किया
तो कुणाल कहते हैं कि रमन आई विल गिव यू जितना भी लॉस अनामिका तुम्हें करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बिटवीन रमन एंड कुणाल ओनली, नॉट विद अनामिका। अनामिका जॉब पे जरूर लगेगी, लेकिन रमन और कुणाल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। रमन अनामिका से काम लेगा, लेकिन अगर अनामिका ने लॉस कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, 200 रुपीज का लॉस हो गया रमन को, तो वो कौन देगा? कुणाल। एम आई क्लियर? तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं इंडेमनिटी। वारंटी इज नॉट डिफाइंड। इसमें क्या क्या राइट्स होते हैं इंडेमनिटी में? तो वो प्रोमिसर से क्या क्या रिकवर कर सकते हैं? ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज। तो कितने भी डैमेजेस हो जाएं, वो सारे कवर कर सकता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फिर अगर कोई भी कॉस्ट हो जाए या कॉम्प्रोमाइज की जो भी हुआ, अगर किसी ने केस किया, तो उसकी भी सारी रिकवरी वो इंडेमनिटी होल्डर से करेगा। देन जितने भी सम्स जो उसको पे करने पड़े कॉम्प्रोमाइज और एनी सूट में, तो वो भी उसको देने पड़ेंगे। तो डैमेजेस, कॉस्ट और एंड द थर्ड इज कॉम्प्रोमाइज। तो तीन चीजें हैं जो इंडेमनिटी में एक पार्टी को दूसरी पार्टी को देनी पड़ती है। क्लियर? तो देन द नेक्स्ट चैप्टर इज 2.10 इम्पॉसिबिलिटी एंड फोर्स मेजर। राइट? सो विल स्टार्ट विथ इम्पॉसिबिलिटी एंड फोर्स मेजर। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि इम्पॉसिबिलिटी को वी विल डिसाइड और एक्सप्लेन इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो इम्पॉसिबिलिटी और फोर्स मेजर दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 32 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डिफाइन करता है कंटिंजेंसी को। राइट? तो वो कैसे कंटिंजेंसी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट मींस happening or non-happening of an event. So A makes a contract with B to buy B's horse if C dies before A. This contract cannot be enforced by law unless and until C dies during A's lifetime, है ना? तो इसमें कंटिजेंस है, राइट? एक कंटिजेंट कंडीशन है, अगर वो नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? घोड़ा परचेज करने का। कंटिजेंसी क्या है? किसी इफ सी डाइज बिफोर ए, किसी शुड डाई बिफोर ए, लेकिन खुद जाके मारना नहीं है उसने सी को, ठीक है। तो 36 ऑल्सो टॉक्स अबाउट एन एग्रीमेंट ऑफ कंटिजेंसी, जिसमें इम्पॉसिबल इवेंट की बात की है। अगर आपको याद हो तो उसमें क्या बोला था? टू पैरेलल लाइंस वुड बी मीटिंग ओनली देन आई विल डू दैट। इम्पॉसिबल है, वो कभी भी नहीं मीट करेंगी। तो ऐसे ही हमारे पास सेक्शन 56 है। तो अगर आप बात करते हैं इम्पॉसिबिलिटी की, तो आपने शुरुआत करनी है 32, 36 और फिर 56 की। सेक्शन 56 है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो इम्पॉसिबल को बात करता है। और कोई भी एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इम्पॉसिबल है, उसको क्या कहते हैं हम? वॉइड। वो क्या हो जाता है? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। राइट? Contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or reasons of some event he could not prevent unlawful becomes void when the act provides impossible or unlawful। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है उस टाइम पे अनलॉफुल नहीं होता, राइट? ये बाद में हो जाता है, आफ्टरवर्ड्स इम्पॉसिबल हो जाता है और अनलॉफुल। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 10 kg शुगर दूंगा 31 जनवरी को, और 11 जनवरी को एक न्यू लॉ आ गया कि कोई भी शुगर को सेल या परचेज नहीं कर सकता। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? अनलॉफुल। अगर वो इसे परफॉर्म करेगा तो अनलॉफुल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट एक रूल निकाल दिया। इम्पॉसिबल कैसे हो जाता है? वॉइड कैसे हो जाएगा? जैसे एलियन फ्रेंड्स वुड बिकम एलियन एनिमी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ए एग्रीज टू मैरी बी इफ बी गेट्स ए द मून इन द स्काई। वो क्या कहता है? अगर तुम चांद लेके आ जाओगे स्काई से, तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। तो ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड। कभी चांद आएगा ही नहीं यहाँ पे। ए agrees with B to discover treasure by magic, ये भी void है। A and B contract to marry each other before the time fixed for marriage, A goes mad, ये भी void हो गया, क्योंकि mad से तो कोई शादी नहीं करेगा। इंडियन कंपनी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई शुगर टू पाकिस्तान विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद क्या हो जाता है? वॉर डिक्लेयर हो जाती है दोनों नेशन में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड, क्योंकि एन एलियन फ्रेंड्स वुड बिकम एलियन एनिमी बाय द डिक्लेरेशन ऑफ अ वॉर। ठीक है। ऐसे एक फोर्स मेजोर वर्ड होता है, फोर्स मेजोर। अनिल एंड सुनील एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अनिल
promised to deliver 100 laborers for building his house. वो क्या कहता है, मैं तुम्हें laborers दूंगा और उससे तुम घर बना लेना. At the time of making the contract, they included the clause force majeure. Force majeure means act of God. Force majeure को अपनी notebook पे लिखो. Act of God, जो किसी पर्सन के द्वारा सिचुएशन नहीं होती. जैसे वॉर तो फिर भी सिचुएशन इन द हैंड ऑफ पीपल है, ठीक है, लोगों ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें वॉर करनी चाहिए कि नहीं. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोग डिसाइड नहीं करते, जैसे कि कोविड-19 था, जैसे कि कोई महामारी फैल गई, जैसे कि फ्लड्स आ गए, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, ये इसको कोई पर्सन नहीं करता, ये एक्ट ऑफ गॉड है. बट अनिल कुड नॉट डिलीवर द लेबर टू सुनील ड्यू टू कोविड-19 लॉकआउट. अंडर दिस सिचुएशन अनिल इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, फोर्स मेजोर क्लॉज लगेगी, क्योंकि इसमें ड्यू टू द एक्ट ऑफ कंट्रोल, इट वाज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज, किसी पार्टी के हाथ में नहीं था कि वो कोविड-19 में अपने लेबर्स प्रोवाइड करे, क्योंकि उसमें लॉकडाउन हो गया था, तो कोई किसी को कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकता था. तो इसमें फोर्स मेजोर क्लॉज लगेगी और इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड. फोर्स मेजोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड नहीं है, ये फोर्स मेजोर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिफाइंड है. ठीक है, एम आई क्लियर, सबको क्लियर है ये, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, सबके पास स्टडी मटेरियल है. और इम्पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हमने अच्छे से करना है, और आपको फोर्स मेजोर भी पता होना चाहिए. और अगर क्वेश्चन आए वेदर फोर्स मेजोर इज डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आंसर होगा नो, फोर्स मेजोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड नहीं है. विद दिस 2.10 इज ओवर. We will start with termination by novation. ठीक है, टर्मिनेशन बाय नोवेशन. टर्मिनेशन बाय नोवेशन, नोवेशन का मतलब क्या होता है, न्यू. नोवेशन का मतलब क्या होता है, न्यू. जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट न्यू बनता है तो ओल्ड, उससे पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, खत्म. सेक्शन 62 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो किस किस को डिफाइन करता है, नोवेशन, रिसीशन, ऑल्टरेशन. नोवेशन मीन्स न्यू, ठीक है. रिसीशन मीन्स कम कर दे, रिसीशन मीन्स किसी को कम कर देना. ऑल्टरेशन मीन्स चेंज कर देना. नोवेशन में न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन पार्टीज, इसमें हो सकता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट न्यू हो, पार्टीज में बी द सेम. रिसीशन में पार्टीज चेंज हो सकती हैं, ये पार्टीज सेम हो सकती हैं, कुछ कम हो जाता है, राइट. ऑल्ट्रेशन में भी चेंज हो जाती है बिटवीन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये हमने ऊपर किया था, ठीक है. ऊपर तो हमने नोवेशन, रिसीशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन ये किया था, लेकिन यहाँ पे अभी इन्होंने 62 को डिफाइन किया. एंड राम, इसमें हम करेंगे ए ओज बी 10,000 रुपीज. A enters into an agreement arrangement with B and gives mortgage A's estate 5,000 in place of a debt of 10,000. This is a new contract and extinguishes the old. अब क्या हुआ, A ने 10,000 रुपए लिए और उसके बाद A ने क्या किया, B के साथ न्यू एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हें गिरवी रख के दे रहा हूँ अपनी एस्टेट 5,000 रुपए के लिए, इंस्टेड ऑफ 10,000 के लोन के लिए, ठीक है. तो उसने चेंज कर दिया, पहले उसने उससे 10,000 लिए थे, 10 ही वापस करने थे, अब उसने मॉर्टगेज में कन्वर्ट कर दिया. तो जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटिकली ये खत्म हो गया, अब उसको 10,000 नहीं देने, अब मॉर्टगेज के हिसाब से उसका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा. ठीक है, क्लियर है. To fulfill section 62, the requirement are that there must be meeting of mind. सबसे important क्या है, meeting of mind होना चाहिए. कभी कभी parties में meeting of mind नहीं होता और उससे contract भी enter नहीं होता. For example, in the case of Lata Construction and others versus Ramesh Chandra Ramni Kala Shah, इस केस में कोर्ट हेल्ड दैट नोवेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लीड्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. नोवेशन में क्या होता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हो जाता है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, एग्जिस्ट हो जाता है. तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन जो होती है, उससे क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विच नो लॉन्गर हैज टू बी परफॉर्म्ड. तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है. ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नोवेशन रिक्वायर्स पार्टी टू एग्री टू एक्सटिंग्विश और डिस्चार्ज इज ऑब्लिगेशन. इसमें पार्टीज को एग्री करना पड़ता है कि हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली चलेंगे. अनलेस दिस हैज बीन अकम्प्लिश्ड देयर इज नो नोवेशन. नोवेशन का मतलब होता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एक्जिस्टेंस एट द प्लेस ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जैसे लीज एग्रीमेंट है, where the tenant gives the lease to another party to make him responsible for obligation and responsibility arising from the lease agreement. तो इसमें क्या हुआ, लीज एग्रीमेंट है लेकिन टेनेंट ने लीज दूसरी पार्टी को दे दी,
है ना, उसकी ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटीज अब शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पे नोवेशन हो गया, right? 66 of Indian Contract Act also deals with the communication of revoking rescission of the voidable contract. जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट voidable है, राइट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो voidable है उसको या तो वैलिड या तो void डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी voidable कॉन्ट्रैक्ट है वो कम्युनिकेट नहीं किया, ठीक है, वो कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो फिर रेवोकेशन, वैसे तो उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसीशन ऑफ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट मे बी कम्युनिकेटेड और रिवोक्ड इन द सेम मैनर एंड द सब्जेक्ट टू सेम रूल एज कम्युनिकेशन रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल हैपेंस। तो जब भी हम रिसीशन की बात करते हैं या वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, उसमें से क्या चूज किया, वैलिड चूज किया, वर्ड किया, तो ये कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। और जो भी कुछ हम कम्युनिकेट करते हैं उसके ऊपर सेम रूल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ए ने कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्री कंसेंट से नहीं हुआ, जिसमें कोरिजन हुआ, ठीक है, जिसमें कोरिजन से कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, और एक पार्टी ने चूज किया कि मैं इसे वॉइड, जिसके पास राइट है उसने चूज किया मैं इसे वॉइड डिक्लेयर कराऊंगा। बट आप इमेजिन करो कि वॉइड डिक्लेयर कराने का उसने चिट्ठी डाल दी कि मैं इसे वॉइड डिक्लेयर कराऊं, लेकिन उससे पहले उसने सोचा कि कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक ही है, चलो इसे वैलिड डिक्लेयर करता हूँ, उसे कॉल करके बोलता है कि आई आई वांट टू मेक दिस कोरिजन का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था इसे वैलिड डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो जो मेरा चिट्ठी आएगी आपको 2 दिन बाद पहुंचेगी, उसको कंसीडर मत करना। तो यहाँ पे हमने कम्युनिकेट कर दिया, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं रेवोकेशन को। अगर आपने रेवोकेशन प्रपोजल है वो आप तब तक रिवोक कर सकते हैं या अपनी रेवोकेशन वापस ले सकते हैं किसी फास्टेस्ट मीडियम से। अगर आपने रेवोकेशन अपनी बाय पोस्ट भेजी है तो आप उसे रिवोक कर सकते हैं बाय कॉलिंग अ पर्सन, सेंडिंग अ मैसेज, सेंडिंग एन ईमेल, बाय फास्टर मीडियम से। तो सेम रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन और रिसीशन ऑफ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? As per section 75, party rightfully rescinding contract is entitled to compensation. जिस पार्टी का राइट जो पार्टी इसको rightfully rescind कर रही है, इट मीन्स जिसके ऑप्शन पे वो voidable है, तो उसको क्या मिलेगा? कॉम्पेंसेशन। उसको क्या मिलेगा? कॉम्पेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, a waiter contracts with B, the manager of a hotel, to work at his hotel for 2 nights in every week. तो वो क्या कह रहा है? मैं हर हफ्ते 2 दिन काम करूंगा, ठीक है। तो बी एंगेजिंग, वो उसे कहता है हर रात का मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा? 100 रुपए। ऑन द 6th नाइट ए विलफुली एब्सेंट हिमसेल्फ, ए जानबूझ के नहीं आया, तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो सकता है। बी इज एंटाइटल टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज, जो उसको डैमेज हुआ है एक दिन जब वो नहीं आया, एक नाइट, वो उससे रिकवर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसने राइटफुली रिसिंड किया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, राइटफुली रिसिंड करने का मतलब क्या होता है कि तुम जानबूझ के नहीं। अगर वेटर यहाँ कहता कि मैं इतना बीमार था इसलिए नहीं आया, या प्रूव करता कि मैं हॉस्पिटलाइज था, कुछ हो गया था, मेरे घर में इमरजेंसी थी, तो ये तब भी अगर वो उसे निकालता तो वो राइटफुली रिसाइंड ना होता। राइटफुली मीन्स अगर एक पार्टी ठीक है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट को इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड किया, रिसिंड मीन्स खत्म किया, तो उस पार्टी को कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैनेजर है उसको कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा जिस रात वो नहीं आया, और उसके पास ये भी राइट है कि वो वेटर को बोले आगे से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? सबको क्लियर है 2.11? अब हम करेंगे 2.12।